So we were talking about here about C2, which I gave you as homework. So its bond order is 2 and it is diamagnetic in nature. Because it does not have any unpaired electrons present in it. Now, if I talk about N2, N2 will have how many electrons? Total 14 electrons here. Okay, so we are going to write it as sigma 1 is 2, sigma star 1 is 2, sigma 2 is 2, sigma star 2 is 2, pi 2px2, pi 2py2, and sigma 2pz2. So these are the total 14 electrons for N2 molecules. And if we want to find out the bond order here, so bond order is going to be, of course, there are 10 electrons in the bonding and 4 electrons in the anti-bonding. Divided by 2, it is going to be 6 by 2, that is 3. So bond order for N2 molecule is 3. And if I talk about the magnetic nature, of course, there is no unpaired electron present here, so it is diamagnetic in nature. Okay, now let's come to this N2 minus species. Okay, so now when we are talking about N2 minus species, first we have to find out how many total electrons are there. If 2 nitrogens are there, then there is 14 electrons. But since there is one negative charge, so we will have one more electron. So for this, we have total 15 electrons. Now we'll write the configuration. Sigma 1 is 2, sigma star 1 is 2, sigma 2 is 2, sigma star 2 is 2. Then pi 2px2 is equal to pi 2py2. Then sigma 2pz2 and pi star 2px1. Okay, so these are this is the electronic configuration for N2 minus ion. Now if I want to find out the bond order here, so bond order will be equal to, since I have N2 minus, to count the number of electrons in the bonding orbital, that is your 10, minus anti-bonding is 5 divided by 2, that is 2.5. Okay, and since we have one unpaired electron present here, so this is paramagnetic in nature. Okay, next was our N2 plus. Of course, if 2 nitrogens are there, there will be 14 electrons, but we have a positive charge. That means you have removed 1 electron. So total electrons here is 13 electrons. Okay, so you have to find out the bond order here. Similar configuration will be there. So you will have sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px2 is equal to pi 2py2, and sigma 2p1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. So we have total 13 electrons here. Now you have to find out the bond order. So for bond order, it is going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correct, 9. 9 minus 4 divided by 2, which is 5 by 2, which is equal to 2.5. And again, you have one unpaired electron present here. So it is going to be paramagnetic in nature. Understood, everyone? Acha, if I ask you N2 plus and N2 minus, which is more stable? Out of these two, which is going to be more stable? Tell me.
out of N2 plus and N2 minus, which is going to be more stable. For bond order for both is 2.5. इसका भी bond order is 2.5 and इसका भी bond order is 2.5. So how we are going to check the stability here? Okay, so in this case, N2 plus is more stable than N2 minus. The reason is that N2 minus has more number of electrons in its anti-bonding orbitals. Here you have 5 electrons in anti-bonding, here you have 4 electrons. And we know that anti-bonding orbitals are less stable. Okay, so we can write down the reason here, because N2 minus has more number of electrons in its anti-bonding orbital. Okay, now next what you have to do is do it for O2. O2 molecule के लिए find out the bond order जल्दी से without wasting any time. ध्यान रखना है, लास्ट क्लास में एक चीज यहाँ पे बताई थी कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो O2 या F2 या उससे ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग था, एंड फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर लिटिल बिट डिफरेंट. Okay, Snigdha, your answer is right. Tell me about the magnetic nature of the molecule also. Snigdha, how can be diamagnetic? ढंग से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है क्या? संपदा, योर आंसर इज राइट. ओके, देखो इधर O2 मॉलिक्यूल के लिए आपको बताया था अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसमें 2pz जो है वो पहले आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस था. सो अगर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो. टोटल इलेक्ट्रॉन्स वी हैव 16 इलेक्ट्रॉन्स. अभी लिखना अगर हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, sigma 2pz2, pi 2px2 is equal to pi 2py2, and after that pi star 2px is equal to pi star 2py होता है. तो यहाँ पे जब हम दोनों की एनर्जी इक्वल है तो सबसे पहले हम सिंगल सिंगल फिल करते हैं. अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4/2 which is equal to 2. तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया. मैग्नेटिक नेचर की बात करोगे तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. समझ में आया? So O2 molecule दिखने में लगता है कि 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, it should be diamagnetic but it is not diamagnetic because anti bonding में unpaired electrons present है, that is why O2 molecule is a paramagnetic in nature. अभी आपको होमवर्क में करना है, you have to do it for O2 plus, O2 का तो खैर हो गया, so you have to do for O2 plus, O2 minus and O2 2 minus. This is superoxide. If you remember, हमने redox reaction में करा था, and
This is your peroxide. Okay. इन सब का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट देयर मैग्नेटिक नेचर. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ओके, नेक्स्ट अभी करो F2 मॉलिक्यूल. एंड F2 मॉलिक्यूल का मेरे को बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होएगा और पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा. F2 का एंड देन Ne2 का. ओके चलो मैं कर रही हूँ, फिर देखो आप लोगों ने सही किया है या फिर नहीं किया. ओके, सो फ्लोरीन मॉलिक्यूल वो हायर मॉलिक्यूल में से आ जाएगा. ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो. 9 होते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज 18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, so this is going to be sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2, pi 2px2 is equal to pi 2py2 and pi star 2px2 is equal to pi star 2py2. तो पूरे के पूरे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो बॉन्ड ऑर्डर जब आप इसका फाइंड आउट करोगे, दैट इज गोइंग टू बी फाइंड आउट करो कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 10 minus 8 divided by 2, that is 2 by 2, that is 1. So bond order going to be here is 1. क्या यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नहीं. So it is a diamagnetic species. Ne2 की अगर हम बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इसका अगर हम फिल करना चाहेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, पाई स्टार 2px2 is equal to pi star 2py2 and last में you will have sigma star 2pz2. तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग में 10 है, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में भी 10 है. डिवाइड करोगे वैल्यू आ रहा है 0. तो क्या Ne2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना. डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का कोई नहीं, सवाल ही पैदा यहाँ पे नहीं होता है. ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन करो. दो O2 molecule is paramagnetic yet it is colorless. Why?
सो बात ये होती है कि अगर कहीं भी किसी भी स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी चीज अगर कलर्ड है, तो उसका वो इसी वजह से हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहाँ से वहां, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो या तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो ये एनर्जी अगर आपके पास, इसकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर विजिबल रेंज में पड़ रहा है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मॉलिक्यूल्स के दिखाई देते हैं। तो O2 पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, दैट मीन्स उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू सम कलर, but still it is a colorless molecule. So the question is why? Okay, so I know you might not be knowing the answer, so I'm telling you in this कि अच्छा, अब जब भी आप इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हो तो दो चीजें हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, एक होता है होमो। होमो इज हाईएस्ट occupied molecular orbital. Okay, and there is another term that is LUMO. Okay, LUMO is lowest unoccupied molecular orbital. Okay, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कि जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी अगर हायर है और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके फील्ड है, दैट इज नोन एज होमो। ओके, लोवेस्ट मतलब जिसकी एनर्जी कम है, ओके, बट उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट नहीं है, देन इट इज नोन एज लो लूमो, दैट इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो अभी इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो एनर्जी गैप जो भी होता है होमो और लूमो में, जब हम O2 मॉलिक्यूल का अगर आप देखोगे, जब अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में जो हम फिल कर रहे थे, दैट वाज पाई 2p2 x वाज इक्वल टू पाई 2p y2, एंड लास्ट में था इधर पाई स्टार 2p(x1) इज इक्वल टू पाई स्टार 2p(y1). इसी तरीके से हमने लास्ट का फिल किया था। ओके, तो इन दोनों के बीच में ये ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एनर्जी एंटी बॉन्डिंग है तो एनर्जी हाईएस्ट होगी। ये आपके पास नॉर्मल बॉन्डिंग है, मतलब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुआ, इसकी एनर्जी क्या होगी? लोवेस्ट होगी। तो इन दोनों के बीच में अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं कर पाएंगे तो एनर्जी का गेन या फिर रिलीज दोनों ही पॉसिबल नहीं है, और अगर वो पॉसिबल नहीं है देन ऑफ कोर्स कोई भी कलर शो नहीं होगा। तो इसमें ये लिख लो, इट इज बिकॉज द एनर्जी गैप बिटवीन होमो टू लूमो levels in O2 molecule is so large that radiations of visible light cannot excite electrons from HOMO to LUMO. In fact, O2 shows absorption in UV zone. UV zone में absorption होता है, इसलिए कलर कुछ नहीं दिखाई देगा. So it is colorless. बात समझ में आई सबको? Let me know. Let me know if you have any doubt, any one of you.
ओके, लिखो जल्दी से। कैन नॉट एक्साइट, दिस इज कैन नॉट एक्साइट। क्लियर गाइस? रेज योर हैंड, कुछ बोला करो क्लास में, ऐसे ही चुप मार के बैठना नहीं है। तो वैसे ही 10-15 बच्चे एब्सेंट रहते हैं, मैं बोल बोल के, मैं इसीलिए किसी को वीडियो वगैरह कुछ नहीं अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज आई एम सो पिस्ड ऑफ विद यू पीपल दैट यू डोंट अटेंड द क्लासेस एंड देन लेटर ऑन यू ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग फॉर वीडियोस अपलोड कर दो। दिस इज जस्ट नॉट डन। And in the class also you people don't respond at all. What kind of this behavior is, I really don't understand. And I'm so pissed off. I don't want to like keep on saying all these things again and again. Okay, 54 is the strength, and only 31 students are present in the class, like 20 students are absent. And then you people like समझ में नहीं आ रहा, पूछना नहीं है क्लास में, डाउट क्लियर नहीं करने हैं। एटलीस्ट क्लास में 1.5 घंटा पढ़ रहे हो तो वो जेन्युइनली पढ़ो, उतना तो एफर्ट डालो। उतना भी एफर्ट नहीं डालना है, देन दैट डज नॉट मेक, नो वन कैन स्पून फीड यू, यू गो टू एनीवेयर टू स्टडी, कहीं भी चले जाओ, कोई स्पून फीड नहीं करने वाला। यू हैव टू पुट योर ओन एफर्ट एनीवेज इन ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। इट्स नॉट अबाउट दिस 11th 12th, आगे भी जाके आप ही को एफर्ट करना है, कोई आपका काम नहीं करने वाला है आगे। अभी छोटे बच्चों की तरह ट्रैक थोड़ी रखेंगे कि ट्रैक रखो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, नो वन इज गोइंग टू बी बॉदर्ड अबाउट यू। अगर खुद से नहीं पढ़ोगे, नो वन, कोई भी, यू आर ओनली योर सेल्फ, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। और अगर मेरे से हेल्प चाहिए, किसी टीचर से हेल्प चाहिए, तो यू हैव टू आस्क फॉर इट। ऐसे नहीं है कि बस बैठे रहो और क्लास में सुन रहे हैं, साथ साथ में कुछ वीडियो चल रही है। 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, ढंग से पढ़ाई करो, डोंट चीट योर सेल्फ। हाउ, लाइक, हाउ यू लुक इनटू योर सेल्फ, खुद पे बुरा नहीं लगता है कि खुद कैसे खुद को फेस कैसे करते हो? दैट इज सो बैड, वेरी बैड बिहेवियर। ओके, जस्ट गिव मी 1 minute। ये तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो यू गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आल्सो, अदरवाइज कहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह मिलेगा? जस्ट गिव मी 2 minutes प्लीज।
Okay, fine. So write down what actually bond order tells you for any molecule. Okay, what are the informations bond order gives you? And this write down bond order expresses number of covalent bonds present between bonded atoms in a molecule. ठीक है, कितने उसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, बॉन्ड ऑर्डर वो चीज आपको एक्सप्लेन करेगा. ओके, सो हायर द बॉन्ड ऑर्डर, higher will be the bond energy, or you can say that bond strength, and lesser will be the बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड ऑर्डर का जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ही कम उसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ molecular species comes out to be zero, then it never exists in any condition. Okay, वो exist नहीं करने वाला है. Next, if bond order of molecular species comes in fraction, fraction में अगर value आ रही है, then it is less stable in present form. मतलब जो भी उसका फॉर्म है उस फॉर्म में वो लेस स्टेबल है, and has strong tendency to convert itself into more stable form. ठीक है, तो अगर कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है तो देन इट इज नॉट दैट स्टेबल. ठीक है, एंड स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें, सो दैट इट बिकम्स मोर स्टेबल. फॉर एग्जाम्पल, आप NO मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताओ मुझे कितना होगा, फाइंड करके. व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर फॉर NO मॉलिक्यूल? टेल मी व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO. हाँ, सिंपल रखना है ध्रुव, सिंपल रखना है. नंबर भले ही आपके पास दो अलग अलग एटम्स हो, बट मेथड एंड एवरीथिंग इज स्टिल सेम. दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू दिस टू डू. यस, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है? 2.5. सेम तरीके से करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि
स्मॉलर मॉलिक्यूल में आ रहा है या हायर मॉलिक्यूल में आ रहा है। तो NO का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। ओके, तो व्हाट इट कैन डू इज 2.5 फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन कभी भी फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर होगा तो वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे, आप हटा दिया इसमें वन इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो दिस विल बिकम NO प्लस। ओके, अब जब NO प्लस बन गया तो अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। नाउ फॉर NO प्लस बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। यस 3। गुड, तो यहाँ पे अब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, जिसकी वजह से इट हैज बिकम मोर स्टेबल। तो यही छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर, समझ में आया सबको। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि विच इज मोर स्टेबल, ओके, which is more stable? Options are your NO and O2. Tell me which is going to be more stable. Yes, good. O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2 और NO का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। So O2 is going to be more stable than NO। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। Yes, under root n plus 2. That is not magnetic moment, Sampada. That is not magnetic moment, okay? और n का वैल्यू क्या है, इट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लो, और मैग्नेटिक मोमेंट just equal to under root n plus 2 more magneton। Okay, कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। In this write down, arrange the following molecular species in increasing order of their bond length. And species are N2 2 plus, N2 minus, N2 N2 plus, and N2 2 minus. Second question is correct order of stability among Li2 plus, Li2 minus, and Li2 is. Next question, which of the following molecule is expected to be diamagnetic? Options are O2, C2, N2, and B2। इसको S2 कर दो।
Solve this question. I'm not getting anyone's answer. मोर देन वन आंसर भी हो सकता है वैसे. चलो देखो, टाइम लगा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, सॉल्व भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आई हैव नो आइडिया. ओके, सो आपको क्या करना है, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. ठीक है, सेम मेथड है, कोई कुछ डिफरेंस नहीं है. इसका होगा 2.5, दिस विल हैव 3.0, again this is going to have 2.5 and N22 minus will also have. इसका एक बार चेक करो कितना आ रहा है N22 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर. टू आ रहा है. ओके, इट इज 2.0. तो आपको पता है कि क्या बोला है, बॉन्ड लेंथ बोला है. जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम उसका बॉन्ड लेंथ होगा. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, N2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी. इनवर्स रिलेशन है. ओके, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ. अब N2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2.5 है. 2.5 में आपके पास दो मॉलिक्यूल्स है, दो स्पीशीज है. सो इसमें भी आपको मैंने ये बताया कि दोनों का अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, तो अगर आपको स्टेबिलिटी यहाँ पे चेक करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. ओके, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड, अगर दो मॉलिक्यूलर स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, ओके, देन दे माइट हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ एंड डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज जिसमें हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा. ठीक है, तो इन दोनों के केस में N2 प्लस में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग में, तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो वो आएगा बाद में.
सो पहले आ जाएगा N2 माइनस, 1 सेकेंड, सॉरी, ओके, आउट ऑफ दीज टू अगर आप चेक करोगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में N2 माइनस में है, तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। इधर आ जाएगा N2 प्लस, देन हो जाएगा N2 माइनस, देन हमको इन दोनों में चेक करना है। अब इन दोनों में भी आपको सेम चीज चेक करनी है, जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो N2 माइनस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसके एंटी बॉन्डिंग में, तो उसका बॉन्ड लेंथ वहां पे ज्यादा हो जाएगा। So N2 plus. So this is going to be the order of molecular orbital in the increasing bond length. Next question बोल रहा है कि correct stability order among these species is Li plus 2 का अगर आप bond order निकालोगे that is going to be 0.5. Li2 minus का निकालोगे तो 0.5 और Li2 का निकालोगे तो 1. So of course सबसे ज्यादा stability Li2 की हो जाएगी क्योंकि bond order 1 है। अब इन दोनों में दोनों का ही फ्रैक्शन में, तो अब आपको ये चेक करना है कि किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग में। जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही कम स्टेबल होगा। तो दैट इज योर Li2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड देन वी हैव Li2 प्लस। So this is the order of stability of lithium. So if you are able to find out the bond order, so आपकी काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, अब आपको इसमें से पूछा है कि इन दोनों स्पीशीज में से विच इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। मैं सारे स्पीशीज को ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। O2 का बता दिया है पैरामैग्नेटिक है, C2 इज डायामैग्नेटिक इन नेचर एंड N2 इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक इन नेचर। S2 का अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे कि देयर आर सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नोट डाल के लिखो यहाँ पे। When two molecular species have their equal bond order, then they may have their different bond length and bond strength. अभी क्यों हो रहा है? Molecular species having higher number of anti-bonding electrons will have larger bond length, or you can say that lesser bond strength or stability. Due to more repulsion. क्यों हो रहा है? अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे रिपल्शन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो ड्यू टू मोर repulsion between nuclei of bonded atoms. बात समझ में आया? अच्छा, हम यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं। स्निग्धो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी टू P star Z के बाद, you don't need it. Like it's not in your syllabus. एग्जाम में नहीं आएगा. This is the maximum which is going to come. Okay. सो हमने इसमें देखा कि एंटी बॉन्डिंग के हिसाब से देख रहे हैं, बट क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जैसे हम एंटी बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, क्या हम बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं. ओके, आप सिर्फ एंटी बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी या फिर अनस्टेबिलिटी को चेक करोगे. चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज
हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखेंगे हेटेरो एटम के लिए। अभी तक हमने मैक्सिमम वही देखे हैं डायटोमिक, जैसे O2, N2, F2, Ne2। अब हम जैसे NO का हमने एक चेक किया, उस तरीके के स्पीशीज के बारे में अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लो MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर हेटेरो न्यूक्लियर, हेटेरो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, डाई एटोमिक molecule. So in this case, in case of heteronuclear diatomic molecules, order of energy level of molecular orbital cannot be generalized as in the case of homonuclear diatomic molecule. तो जिस तरीके से हमने बहुत इजीली होमोन्यूक्लियर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट किया है, उतना आसानी से हम हेटेरोन्यूक्लियर के लिए नहीं कर सकते हैं। ओके, write down this. Every heteronuclear diatomic molecule has its individual molecular orbital in which electrons, or you can say that in which sigma molecular orbitals are formed by combination of non-equivalent sp hybridized, sorry, not sp, non-equivalent to p hybrid atomic orbitals. अभी लिखो, फिर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, bond order and magnetic behavior of heteronuclear diatomic molecule can be determined by assuming same order of molecular orbital as in homonuclear diatomic molecule. However, this assumed you can say that this assumption cannot be extended to corresponding heteronuclear molecular ion.
ठीक है, तो ऑल टुगेदर ये है कि हेट्रो न्यूक्लियर का प्रॉपरली हमको पता नहीं है, ठीक है, कोई कोई जनरलाइज्ड वे नहीं है, तो हम हर एक का अपना अलग अलग तरीके से निकालते हैं। आपके सिलेबस में जो मॉलिक्यूल्स आते हैं दैट इज यूजुअली नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, ये एजम्पशन के बेसिस पे ही हम निकालते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। ये दो तीन कुछ है मॉलिक्यूल्स, HF हो गया, ओके, जो एग्जाम में पूछेंगे, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी भयानक आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो इन्हीं दो तीन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ NO मॉलिक्यूल, यानी एजम्पशन के बेस पे, ठीक है, बेस्ड ऑन एजम्पशन हम इसको होमो की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे, यहाँ पे हम ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे, और दोनों मिला के NO मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। अब क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल तो डिफरेंट होगी, नाइट्रोजन का अपना अलग एनर्जी लेवल होगा, ऑक्सीजन का अपना अलग एनर्जी लेवल होगा, दोनों का एनर्जी लेवल सेम नहीं होता, इसलिए इनका जो ओवरलैपिंग है दैट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ओके फाइन। तो ऑक्सीजन एटम की बात करें तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसका जो 1s है दैट इज गोइंग टू बी लोअर देन दी 1s ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम का थोड़ा सा ऊपर साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा। देन इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, ये भी इसका, ये नाइट्रोजन का 1s, ये ऑक्सीजन का 1s, जब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो हियर यू विल गेट 1s ऑर्बिटल ऑफ बोथ, दैट इज सिग्मा 1s2। आप इन दोनों को इस तरीके से फिल करोगे, ओके, एंड सिग्मा स्टार 1s2, तो इसको इन दोनों को यहाँ पे नहीं, इन दोनों को बीच में ही रखो, यहाँ पे एक इधर होगा दैट इज सिग्मा 1s2, एक यहाँ पे होगा दैट इज सिग्मा स्टार 1s2। इस पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, तो दो आपने यहाँ पे भी फिल किया, दो आपने यहाँ पे भी फिल किया। इन द सिमिलर वे 2s का एनर्जी यहाँ पे अगर है तो इसका 2s थोड़ा सा नीचे होगा, इसका 2s, इसका 2s, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अभी जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिग्मा 2s, इसको थोड़ा सा एनर्जी लेवल गड़बड़ हो रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिखो, थोड़ा सा नीचे होगा 2s, ये फॉर ऑक्सीजन एटम, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो यू विल हैव दिस सिग्मा 2s2, और ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2s2। एंटी बॉन्डिंग है तो ऑफ कोर्स इन दोनों के लेवल पे उसका एनर्जी कितना रहेगा, ऊपर, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करोगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करोगे, एंड लाइक दिस यू विल कीप ऑन गोइंग। तो सिंपल जो फिलिंग करोगे वो आप सिंपल ही रहेगा जैसे हमने अभी तक देखा, बट दोनों के बीच में एनर्जी का थोड़ा सा गैप मिलेगा आपको। अब इससे पहले आता है 2p, मतलब इसके ऊपर आएगा अब p वाला ऑर्बिटल, तो अब उसके लिए जगह नहीं है, तो मैं सिंपली आपको बस लिख के बता दे रही हूँ कि कैसे फिलिंग करना है। तो वैसे ही होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, जैसे हम नॉर्मल भरते हैं, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आप फिल करोगे सिग्मा 2pz, क्योंकि ये स्मॉलर वाला मॉलिक्यूल है, फिर पाई पे जाओगे, तो अल्टीमेटली यू विल फाइंड आउट कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर जब निकालना है इसका, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 8 - 3 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 2.5, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। ओके या मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके बना ही देती हूँ, इट विल बी बेटर, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं।
यहाँ पे नाइट्रोजन एटम का 1s है और ऑक्सीजन एटम की एनर्जी थोड़ी कम रहेगी तो वो नीचे रहेगा 1s। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमको इस तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने वाला है। दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। सेम तरीके से आपको 2s को भी फिल करना है। 2s की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी फॉर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए कम होगी। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो हियर वी विल गेट सिग्मा 2s और इसके हायर एनर्जी पे हमको मिल जाएगा थोड़ा सा सिग्मा स्टार 2s। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 2s के बाद 1s 2s, देन वी हैव 2p। नाइट्रोजन एटम के लिए ये 3 ऑर्बिटल्स हैं 2 के, ओके। एंड ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा नीचे 3 रहेंगे बिकॉज ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। So this is going to be, let's say, 2pz, 2py and 2px. Here this will have again 2px, 2py and 2pz। 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एंड हियर ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर NO में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो कितना हुआ 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे इन्हीं 15 इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली फिल करना है, ओके। तो सबसे पहले यू विल हैव, अगर आप प्रॉपर ऑर्डर चेक करोगे फॉर दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर NO नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप ये देखोगे कि किस में लाई कर रहा है, ये लोअर वाले में लाई करेगा जिसमें आपके पास 2pz पहले आता है, ओके। दिस विल हैव सिग्मा 2pz, ओके। तो पहले आप 2pz में फिलिंग करोगे, फिर सिग्मा सिग्मा 2pz के बाद क्या आता है पाई 2px और पाई 2py, देन आप उसमें फिल करोगे, देन उसके पास हायर एनर्जी लेवल पे जाओगे। ऐसे करके आप यू विल कीप ऑन ड्राइंग दिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? लेट मी नो। ओके चलो ड्रॉ कर देते हैं इसको। पहले आएगा सिग्मा 2p z, तो सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे। उसके बाद आएगा आपके पास पाई 2px और पाई 2py। यहाँ पे भी आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उस हिसाब से इसमें देखोगे। अब पाई 2p के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल क्या आ रहा है इसी p ऑर्बिटल में, दैट इज गोइंग टू बी पाई स्टार 2px विल बी इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो यहाँ पे आपके पास रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। इज इट क्लियर? अभी क्लियर है स्निग्धो? हाँ एनीवन हैज एनी डाउट्स? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। जैसे हम लिखते हैं ना नॉर्मल ऑर्डर में, उसी में हमने लिखा हुआ है, बस मैंने डायग्रामेटिक व्यू में वे में इसको एक्सप्लेन किया है।
ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो लिखो, ये जल्दी से ड्रॉ करो। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक सेकेंड, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना बॉन्डिंग में। इसको थोड़ा करेक्शन करो। दीज आर नॉट 8। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 8 +1 5। 10 - 5 by 2, that is 2.5. Done writing? Okay. एंटी बॉन्डिंग में 4 कहाँ है शुक्ति का? एक ये भी तो एक बचा है यहाँ पे, ये रहा ना। अरे, वो इकलौता इलेक्ट्रॉन ऊपर भी तो प्रेजेंट है। 15 इलेक्ट्रॉन्स आपको पुट करने हैं ना, दोनों को ऐड करके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 15 है, तो एक लौता वो आगे ऊपर भी तो है। तो इट्स नॉट 4, इट्स 5, है ना? ओके श्रुतिका, फाइन। सो अगर आपसे यही पूछा, अब NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5। इसका जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ है, अरे यार 1 सेकेंड गाइस। यस, सो हम NO का बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है दैट इज 2.5, और जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.15 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं इसी का NO प्लस ले लूँ, NO प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है, और बॉन्ड लेंथ इज 1.11 एंगस्ट्रॉम, है ना? तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। ओके, राइट ऑन दिस। डू अ क्वेश्चन हियर। अरेंज following molecular species in increasing order of bond length. NO2 minus, NO, NO plus, NO minus, NO2 plus.
Done? You people are taking so much of time. Tell me what is the answer here. Done? Okay. So, पता नहीं क्या किया है, सभी ने सब कुछ गलत किया है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको इन सारी स्पीशीज का। NO2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 1.5 आएगा। सबसे पहले ये चेक करो कि बॉन्ड ऑर्डर करेक्ट है या नहीं। इसका 2.5 है, इसका 3.0 है, इसका 2.0 है और इसका 2.5 है। बॉन्ड ऑर्डर सबका करेक्ट है जिन्होंने भी निकाला है। ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम उसका बॉन्ड लेंथ। ये चीज समझ में आती है? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम उसका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? NO का। तो सबसे सॉरी NO प्लस का, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? NO प्लस की। इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है। अभी ये सबसे कम हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अब इसके बाद आ रहा है आपके पास 2.5 और 2.5। इन दोनों का आपको बॉन्ड लेंथ अरेंज करना है। यहाँ पे एक NO हो गया, एक NO2 प्लस हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अब आपको इसमें चेक करना पड़ेगा, जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है देन यू हैव टू चेक कि किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है। जितना ज्यादा उसके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका बॉन्ड लेंथ। So out of these two, NO has more number of electrons in anti bonding, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा NO, और यहाँ पे हो जाएगा NO2 प्लस। अब यहाँ पे ये हो गया 2.0, ये हो गया 1.5। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम उसका बॉन्ड लेंथ। कितना डिफिकल्ट था ये, इतना इजी सा क्वेश्चन यू पीपल couldn't सॉल्व प्रॉपर्ली। स्निग्धो का करेक्ट था, अपार्ट फ्रॉम दैट सबका गलत था। समझ में आया? रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। ओके। अभी होमवर्क में मैं दे रही हूँ आपको कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ओके, दिस इज होमवर्क एंड यू हैव टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इसी तरीके से सॉल्व करना है और बताना मेरे को कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हियर इज गोइंग टू बी व्हाई एनी सब्सटेंस शो कलर। अभी हमने इस बारे में बात करी थी। सो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, बेसिक कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी कलर्ड। पहला बात तो there must be
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन्स मूव होना चाहिए वन लेवल टू दी अनदर लेवल, ओके। और अगर मूव कर रहा है तो दैट एनर्जी शुड लाई इन विजिबल रीजन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मस्ट लाई इन विजिबल रीजन। अगर विजिबल रीजन में नहीं है तो आपको कलर दिखाई नहीं देगा, ओके। सो अभी जो आप होमो लूमो का पूछ रहे थे, आपको डाउट हो रहा था, उसमें उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। आपके पास कोई भी ऐसा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम हो, उसको हम बोलते हैं होमो। और जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आई? दूसरा आपके पास है लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग नहीं, ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाई है एनर्जी में और उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम है, वो कुछ भी हो सकता है, ओके। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है और ये यहाँ से इधर वापस जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी सम रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे होगा या किस फॉर्म में होगा, एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा, इसी फॉर्म में एनर्जी गेन या रिलीज होने वाली है। तो जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके इस ऑर्बिटल में पहुंचेगा तो वापस भी आएगा, जब वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, इस टाइम पे इसने एनर्जी गेन किया है। तो ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, अगर ये विजिबल रेंज में पड़ेगा, देन इट इज गोइंग टू शो यू द कलर। तो फॉर हैलोजेंस जैसे F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया और I2 हो गया, इन मॉलिक्यूल्स में फ्रीक्वेंटली होमो और लूमो के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन टेक प्लेस करता है। सो ये ऑलवेज दे शो सम काइंड ऑफ कलर। इसका कलर होगा पेल येलो, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो, Br2 का कलर होता है ब्राउन, ओके, एंड I2 का कलर होता है वायलेट। ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन दी होमो एंड लूमो ऑर्बिटल्स। ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, लोवेस्ट ऐसा जिसकी सबसे कम एनर्जी हो। इससे ऊपर भी होंगे बहुत सारे लूमो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, बट ऐसा ऑर्बिटल जो सबसे नीचे है ताकि ट्रांजिशन आसानी से हो जाए। और यहाँ पे हाईएस्ट हम इसलिए ले रहे हैं जो सबसे ऊपर हो और इलेक्ट्रॉन उसमें भरा हुआ हो। इसके नीचे भी होमो होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होगा, बट यहाँ से यहाँ के बीच में ट्रांजिशन ज्यादा होगा। बट अगर हाईएस्ट वाला लेंगे तो ट्रांजिशन का गैप कम है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ज्यादा अच्छे से हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कलर ऑब्जर्व होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इज इट क्लियर? अब कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा कलर दिखेगा, तो आपको पता है विजिबल रेंज में प्योर होता है ना, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होते हैं, यू विल ऑलवेज गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। सो जो वॉयलेट और इंडिगो है, ओके, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है येलो। तो अगर कोई वॉयलेट और इंडिगो का कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब वो कलर रिलीज करेगा दैट इज गोइंग टू बी येलो। अगर आपके पास ब्लू है, ओके, फॉर ब्लू वन द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज ऑरेंज। और अगर आपके पास ग्रीन है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज रेड। These are the transitions here. Got it? चाहे तो इसको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो ताकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद करना इजी हो जाए, लाइक दिस। दिस इज वॉयलेट एंड इंडिगो, इसका उल्टा कलर जो आपको मिलेगा दैट इज येलो। ब्लू होगा तो इट इज ऑरेंज एंड रेड होगा तो इट इज ग्रीन। इज इट क्लियर? जब आप ऑर्बिटल्स फिल कर रहे हो, जैसे sigma 1s2 था, then sigma star 1s2, then sigma 2s2,
सिग्मा स्टार 2s2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं। तो मान लो यहाँ पे सिग्मा स्टार के बाद जो हमारे पास है सिग्मा 2pz, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये खाली है, और सिग्मा स्टार में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा आपके पास होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होमो हो गया क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जिसपे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इसके ऊपर सिग्मा के बाद क्या क्या होने वाला है आपके पास, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये भी खाली है, तो ये भी अनऑक्यूपाइड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट इस इन सब में से लोवेस्ट कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, ये भी अनऑक्यूपाइड है, बट दे आर नॉट लोवेस्ट इन एनर्जी। लोवेस्ट इन एनर्जी यहीं पे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से इधर जाना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, इतना अच्छे से ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा अनटिल अनलेस इसमें चले जाए, जो कि गैप कम है। दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हर एक के लिए अलग अलग होगा, आपको ये देखना है कि किसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, that is going to become highest occupied molecular orbital। और ऐसा कौन सा सबसे पहले एनर्जी लेवल आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, उसी में ट्रांजिशन हो पाएगा, दैट इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? अभी क्लियर है संपदा? ओके, लिख लो ये, एंड नोट डाल के लिखो यहाँ पे। halogens are colored ड्यू टू, सारे हैलोजेंस जो है आपको कुछ ना कुछ कलर यहाँ पे दिखाई ही दे रहा है। ओके संपदा, दैट इज जस्ट एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा था ना, ये एनर्जी के फॉर्म में आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, एनर्जी रिलीज होगा, तो कौन से फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा, या तो एच न्यू के फॉर्म में होगा या एच सी बाई लैम्डा के फॉर्म में होगा, दैट इज ओनली, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स, देयर इज, दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल से ऊपर लूमो में जा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा, एच न्यू के फॉर्म में या एच सी बाई लैम्डा, जो भी है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जब ऊपर से ये नीचे को आ रहा है होमो की तरफ तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी कौन सी, का फॉर्मूला क्या है, वो एनर्जी व्हाट इज इट, इट इज एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग हियर। ओके चलो लिखो यहाँ पे, हैलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू, सारे हैलोजेंस में मोस्टली जो होमो और लूमो के बीच का एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, तभी वो सारे के सारे कलर्ड मॉलिक्यूल है। सो हैलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू होमो लूमो ट्रांजिशन among halogens in F2 molecule homo lumo energy gap is highest, therefore it absorbs energy nearer to violet range and reflects the complementary color which is yellow। ओके सो अगर आप विबग्योर रेंज की बात करोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी होती है और रेड तक वो लोवेस्ट एनर्जी होती है, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा हुआ है ये। ओके होमो लूमो का सबसे ज्यादा जो गैप है सारे हैलोजेंस में से वो फ्लोरीन के लिए ज्यादा है, तो फ्लोरीन को ऑफ कोर्स ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, वॉयलेट या फिर इंडिगो।
अब क्योंकि वो वॉयलेट और इंडिगो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन वापस होमो पे आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब जो एनर्जी रिलीज करेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होने वाला है, एंड वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है येलो, इसीलिए F2 का जो कलर है दैट इज पेल येलो। सेम केस हम आयोडीन के लिए भी बोल सकते हैं। आयोडीन के बीच में होमो और लुमो के बीच का जो गैप होता है वो काफी कम होता है। अब उस उनके बीच का गैप काफी अगर कम है तो हमको ज्यादा एनर्जी वो नहीं एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो वो एब्जॉर्ब करता है येलो के रेंज में कहीं, यहाँ पे कहीं एब्जॉर्ब करेगा I2। अब I2 ने अगर एब्जॉर्ब ये किया है तो कलर शो कौन सा करेगा? वॉयलेट। इज इट क्लियर? अब मैं ये बोल रही हूँ कि सबसे कम है, इसका मतलब ये नहीं कि रेड करने लगेगा। वो टोटली ऑफ कोर्स उस पर डिपेंड करता है कि कौन से कलर रेंज में कितना एनर्जी उसको चाहिए। I2 को येलो के रेंज का ही एनर्जी चाहिए, तो अगर उसने येलो के रेंज का एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो रिलीज करेगा वॉयलेट का। ओके, सो ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज डन। ओके, बस एक फजान्स रूल बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इट विल टेक हाफ एन आवर और like 1 hour, and this chapter is completed then.